آج ہم بات کریں گے سارہ شریف، ایک ہسمکھ اور معصوم سی بچی جس کی مختصر زندگی ظلم اور تشدد کی نظر ہو گئی۔ یہ کہانی نہ صرف دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ آئیے سارہ کی کہانی سناتے ہیں آپ کو اور سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ ماحول آخر کب بنا پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سدرا منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دانشور۔ گزشتہ سال 10 اگست کی رات 2:47 کا وقت تھا جب سرے پولیس کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک کال موصول ہوتی ہے۔ ایک لرزتی ہوئی آواز میں ہچکچاتے ہوئے مرد نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے کچھ زیادہ ہی پیٹ ڈالا ہے جس کی وجہ سے وہ مر گئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف سزا دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک ظالم باپ ہوں۔ یہ شخص عرفان شریف تھا۔ کال ختم ہونے سے پہلے ہی پولیس میاں شریف خاندان کے گھر کے دروازے بجا رہی تھی۔ اوپر کی منزل پر اسے بستر کی چادر کے نیچے سے 10 سالہ سارہ شریف کی لاش ملتی ہے۔ تکیے کے بالکل ساتھ ہی ایک نوٹ موجود ہوتا ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ عرفان نے اپنی بیٹی کو مارا اور اسے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے علم ہوا کہ سارہ کی موت لاتعداد چوٹوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی اسے اتنی بے دردی سے پیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے کہ وہ مر گئی۔ ان کے جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، سر پر بھی شدید چوٹ تھی، جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان تھے اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ سارہ کو جلتی ہوئی استری سے بھی جلایا گیا تھا۔ مکان اور باغ کی تلاشی لی گئی تو خون آلود کرکٹ بیٹ سمیت دیگر اشیاء بھی وہاں سے ملی تھی۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی بچی کی زندگی کا اختتام تھا جس کی استانی کے مطابق سارہ سب سے زیادہ خوش سٹیج پر ہوتی تھی۔ سارہ کو گٹار بجانا بہت پسند تھا۔ وہ خوش ہوتی تھی جب لوگ اس کے لیے کلیپ کرتے تھے۔ جب وہ گٹار بجاتی تھی، لوگوں سے داد سمیٹتی تھی، وہ بڑا خوش ہوتی تھی۔ ان کا سب سے پسندیدہ رنگ گلابی تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سارہ کے والد عرفان اور ان کی سوتیلی والدہ بینش کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ سارہ کے چچا فیصل ملک کو قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا ہے، لیکن انہیں ایک بچے کی موت کی وجہ بننے کے الزام میں مجرم ضرور قرار دیا گیا ہے۔ منگل کے دن عدالت کی جانب سے ان کو سزا سنائی جائے گی۔ 8 ہفتوں پر محیط سماعت کے دوران ایک ایسی بچی کی تصویر ابھر کر سامنے آئی جسے ان کے سب سے قریبی لوگوں نے دھوکہ دیا اور تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ باپ جو کہ سایہ ہوتا ہے، جو کہ پورے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ لوگ جن پر اسے اعتماد تھا۔ سارہ کی تصاویر میں ان کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آپ سکرینز پر بھی پکچرز دیکھ سکتے ہیں، لیکن گھر پر انہیں پیٹا جاتا تھا۔ مقدمے میں بار بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرے کاؤنٹی کے مقامی بچوں کی دیکھ بھال کی سروس سمیت پولیس اور سکول انتظامیہ ان کے گھر والوں کے رویے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی زندگی نہیں بچا پایا۔ دیگر میڈیا رپورٹس کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک قانونی مقدمے کے بعد اب ہم کونسل اور عدالتوں کے کردار کے بارے میں زیادہ تفصیلات شائع کر سکتے ہیں۔ سارہ 3 سال کی عمر میں 2 بار فاسٹر کیئر جا چکی تھی۔ ان کی مختصر سی زندگی تشدد میں بہت گھری ہوئی تھی۔ 11 جنوری 2013 کو ویکسم پارک ہسپتال میں پیدا ہونے والی سارہ شریف کے والد پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے برطانیہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارہ کی والدہ اولکا ڈومن سے 2009 میں شادی کی جو پولش شہری تھی، محدود انگریزی بول سکتی تھی۔ سارہ کی پیدائش سے قبل ہی یہ خاندان پولیس کی نظر میں آ چکا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق 2010 سے 2012 تک پولیس کا 4 بار اس جوڑے سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ سرے کاؤنٹی کونسل چلڈرن سروس بھی 2010 سے رابطے میں تھی۔ اس کی وجہ ان کا ایک اور بچہ تھا جسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان میں تشدد کا معاملہ بھی ہوا تھا۔ اس بچے کو عدالت میں زیڈ کا نام دیا گیا۔ 2010 میں زیڈ ایک دکان میں تنہا پایا گیا تھا جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ اسی سال عرفان شریف کو اولگا پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا۔ لڑائی کے دوران عرفان نے زیڈ کو بھی مارا جس کی کمر پر ایک ہاتھ کا نشان بھی بن گیا تھا۔ 2011 میں زیڈ نے اسکول میں بتایا کہ اس کے والد نے اسے پیٹا ہے اور اگلے سال اس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے اسے مارا ہے۔ بچے کے جسم پر جلائے جانے کے نشانات بھی دیکھے گئے اور ایک اور موقع پر وہ پھر تنہا پایا گیا۔ اس بار وہ گھر سے قریباً ½ کلومیٹر دور۔ سوشل ورکرز کے مطابق زیڈ اور ایک اور بچے کو ناقابل فہم زخم لگے تھے۔ اس دوسرے بچے کا نام عدالت میں یو لکھا گیا ہے، یعنی ان کے جو حقیقی نام ہے ان کو چھپایا گیا ہے۔ سارہ کی پیدائش سے قبل بچوں کے خلاف تشدد کے
और इल्जामात भी सामने आए थे। 2013 में एक और वाकया हुआ जिसमें जेड को इस्त्री लगा के जलाया गया था। सोशल वर्कर्स ने घर का दौरा किया तो देखा कि बच्चों के कमरे में बल्ब ही नहीं है, यानी पूरा अंधेरा है, कोई एक लाइट भी नहीं है। उसका मतलब था कि सारा पैदाइश से पहले ही एक अदालती हुक्मनामे के तहत हिफाजत की हकदार हो चुकी थी। मुकामी हुक्काम के पास बाकी 2 बच्चों समेत सारा की कानूनी जिम्मेदारी का इख्तियार भी मौजूद था और सोशल वर्कर बाकायदगी से घर का दौरा भी करते रहते थे। सारा को पहली बार नवंबर 2014 में फास्टर केयर में लिया गया जब वो सिर्फ 2 साल की थी। उस वक्त जेड ने शिकायत की थी कि ओल्गा ने जोर से उनको काटा था जबकि इरफान ने मुक्का मारा था। फास्टर केयर मुंतजमीन ने देखा कि सारा और दूसरे बच्चे यू के जिस्मों पर ऐसे निशान थे जैसे जलते हुए सिगरेट लगाए गए हों। ओल्गा और इरफान के मुताबिक ये चिकन पॉक्स बीमारी के निशानात हैं। फिर 2015 आ जाता है। 2015 में ओल्गा ने इरफान पर इल्जाम लगाया कि उनको और उनके बच्चों को पीटा जाता है। उन्होंने पुरतशद्दुद रवैये का इल्जाम लगाया। ताहम उन इल्जामात पर अदालत में कार्रवाई से कबल इरफान शरीफ ने घरेलू तशद्दुद के बारे में एक तालीमी कोर्स करने की हामी भर ली थी। इससे कबल इरफान के खिलाफ पुरतशद्दुद रवैये की शिकायत सामने आ चुकी है। उनकी 2 साबका गर्लफ्रेंड्स ने 2007 और फिर 2009 में उन पर इल्जामात आयद किए थे कि उनको कैद किया गया है। अभी सारा 2 साल की भी नहीं हुई थी कि वो और यू घर वापस आ गए। ताहम जेड फास्टर केयर में ही रहा। एक ही साल बाद जब ओल्गा तशद्दुद का इल्जाम लगाकर घर छोड़ गई तो सारा फिर से फास्टर केयर में पहुंच गई। उनके वालिदैन की अलहदगी के बाद वो अपनी वालिदा के साथ ही रही। इरफान शरीफ को सिर्फ महदूद हद तक उनसे मिलने की इजाजत थी। कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान एक सोशल वर्कर ने बताया कि जब एक बार इरफान सारा से मिलने गया तो बच्ची ने चीख कर कहा कि चले जाओ। उन्होंने ये भी बताया कि यू ने एक बार कहा था कि उनके वालिद ने उनकी वालिदा को मुंह पर मारा है और उनका खून निकल आया। इरफान की ओल्गा से अलहदगी से कबल ही बीनिस से मुलाकात हो चुकी थी जिनसे तारुफ टैक्सी कारोबार की वजह से हुआ था। इस दौरान सारा अपनी हकीकी वालिदा के साथ ही रिहाइश पजीर थी और लग रहा था कि उनकी जिंदगी में आखिरकार सुकून आ गया है। लेकिन 2019 में इरफान के मुताबिक सारा ने उनको बताया कि ओल्गा उन पर तशद्दुद करने लगी। फैमिली कोर्ट की दस्तावेजात के मुताबिक सारा ने कहा कि ओल्गा ने उनको लाइटर से जलाने और डूबकर मारने की कोशिश की है। सारा ने यह भी कहा कि उनकी वालिदा ने उनको थप्पड़ मारे हैं और उनके बाल भी नोचे हैं। इरफान शरीफ ने चंद इल्जामात एक वीडियो पर भी रिकॉर्ड किए हैं और ये वाज़ेह नहीं किया कि इरफान ने ऐसा करने में सारा की हौसला अफजाई की है। एक बार फिर सोशल सर्विस तक मामला पहुंच जाता है, जिन्होंने जायजा लिया कि सारा को किसके साथ रहना चाहिए और इरफान शरीफ के माजी के रवैये के बावजूद सिफारिश की गई कि सारा और यू इरफान शरीफ के साथ रहेंगे। अक्टूबर 2019 में गैलफोर्ड की फैमिली अदालत ने इत्तफाक किया कि सारा को अपने वालिद और सौतेली वालिदा के साथ मुंतकिल हो जाना चाहिए। फैसला सुनाने वाले जज माजी के इल्जामात से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। ओल्गा ने इस माहदे से इत्तफाक किया और उनको हफ्ते के दिन 2 घंटे के लिए मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, जिसकी सरपरस्ती बीनिश बतूल को सौंपी गई थी। ताहम बाद में सारा का अपनी वालिदा से राब्ता भी ख़त्म हो गया। इरफान शरीफ और बीनिश वेस्ट बायफ्लेट में एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर थे और सारा को मकामी सेंट मैरी प्राइमरी स्कूल में दाखिल भी करवा दिया गया था। लेकिन हमसायों को वाज़ेह था कि घर में सब अच्छा नहीं है। एक हमसाय ने अदालत को यह भी बताया है कि उनको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। एक बार उन्होंने अदालत को बताया कि जब ये आवाज़ें बहुत बुलंद हो गई तो उन्होंने जाकर पूछा कि क्या सब ठीक है, और बिनिश ने हाँ हाँ का जवाब दिया कि हाँ हाँ सब ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया। एक और हमसाय के मुताबिक उस घर में सिर्फ तब खामोशी होती जब इरफान और उनके घर वाले बाहर चले जाते थे। अदालत को बताया गया कि ताहम किसी भी हमसाय ने कभी पुलिस या सोशल सर्विस को शिकायत नहीं की। दिसंबर 2024 में बिनिश ने अपनी बहन कंदीला सबोही को सारा की चंद तस्वीर अरसाल की, जिनमें उनके चेहरे और बाजू पर चोटों के निशान वाज़ेह थे। अगले 2 साल बिनिश ने अपनी बहनों को अक्सर ऐसे पैगाम भेजे जिनमें कहा गया कि इरफान सारा को बहुत मारता है और वो चल नहीं पाती। एक रात ऐसे ही एक पैगाम के मुताबिक सारी रात इरफान ने सारा से मशक्कत करवाई। एक पैगाम में बिनिश ने लिखा कि सारा को बचाने के लिए इरफान को धक्का देना पड़ा।
बीनिश या उनकी बहनों में से किसी ने भी पुलिस या सोशल सर्विस को कभी इत्तला नहीं दी। बीनिश ने अपने अहले खाना को बताया कि सारा से स्कूल में बुरा सलूक किया जाता है। उनकी स्कूल टीचर हेलमन के मुताबिक सारा आसानी से दोस्त नहीं बनाती थी, वो अकेले रहना पसंद करती थी, लेकिन उनको स्टेज पर गाना और परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था। हेड टीचर जैकी चैम्बर्स के मुताबिक सारा पूरे एतमाद, हंसमुख, जिंदगी और तवानाई से भरपूर बच्ची थी। 2022 में जब सारा को स्कूल से हटा लिया गया तो खदशात बढ़ने लगे। हेलमन के मुताबिक ये अजीब बात थी, ताहम सारा सितंबर में स्कूल वापस आ गई। इसी दौरान सारा ने हिजाब करना भी शुरू कर दिया। इरफान शरीफ सारा को 4 बार थप्पड़ मारते दिखाई दिए गए थे। हिजाब के बावजूद मार्च 2023 तक हेलमन सारा के चेहरे पर चोटों के निशान देख रही थी। उनके मुताबिक ये ताज़ा निशान नहीं थे। सारा ने कहा कि वो रोलर स्केटिंग करते हुए गिर गई थी, लेकिन उसका बयान दुरुस्त नहीं लग रहा था। सारा ने एक दोस्त से कहा कि वो साइकिल से गिर गई थी। स्कूल इंतजामिया ने सोशल सर्विस से राब्ता किया और एक बार फिर सरे काउंटी काउंसिल के चिल्ड्रन सर्विस तक मामला पहुंच गया। 6 दिन की तफ्तीश हुई और काउंसिल ने स्कूल को बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ताहम उन्होंने स्कूल इंतजामिया से सूरत हाल पर नजर रखने को कहा। ये सब 2010 से पुलिस को सब पता था, लेकिन उसके बावजूद उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। अदालत में बताया गया कि बीनिश सारा को स्कूल छोड़ते हुए पंजाबी जबान में गालियां भी देती थी, जो कि उसकी सौतेली मां थी। 28 मार्च को सारा एक और चोट के जख्म के साथ स्कूल पहुंची। बीनिश ने कहा कि ये चोट पेन की वजह से लगी है। स्कूल ने ये सब कुछ नोट कर लिया। अगले माह इरफान अपने घर वालों के साथ वॉकिंग में एक बड़े मकान में मुंतकिल हो गए थे। सारा के चचा भी उनके साथ ही रहने लगे। उस वक्त के बाद सारा स्कूल नहीं गई। इरफान ने सेंट मैरी स्कूल इंतजामिया को एक ईमेल लिख दी, जिसमें यह बताया गया कि सारा अब घर पर ही पढ़ेगी। स्कूल इंतजामिया की जानिब से सारा पर नजर रखने का सिलसिला भी खत्म हो गया, जो वॉकिंग में इरफान शरीफ के हमसाये में रहती थी। वो अक्सर सारा को बागीचे में देखा करती थी। उनके मुताबिक सारा एक छोटे बच्चे का ख्याल रखती थी। ताहम जो डी ने ना तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और ना ही कभी सारा को चोटों के निशानों के साथ देखा, लेकिन वो कहती थी कि मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। वो गुमसुम रहती, अजीबो गरीब सी बातें करती, उसके अलावा कोई मशकूक चीज़ नहीं थी। 25 मई को बीनिश ने अपनी बहन को एक पैगाम भेजा और कहा कि पागलों की तरह उसे पीटा है, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही। सारा की जिंदगी के आखिरी अयाम में उन पर होने वाला तशद्दुद बढ़ता चला गया था। इरफान शरीफ ने अदालत में इकरार किया है कि उन्होंने क्रिकेट बैट और धाती डंडे से सारा को पीटा था। ताहम सारा के जिस्म पर दांत से काटने के निशानात भी मौजूद थे। इरफान शरीफ के दांतों के नमूनों से नहीं मिले थे उन दांतों के निशान। इरफान ने सारा को इस तरह से जलाने की भी तरदीद की है। आखिरी हफ्तों में सारा की हड्डियां 25 बार टूटी, लेकिन उनको एक बार भी अस्पताल नहीं ले जाया गया। उनकी कोई भी मेडिकेशन नहीं करवाई गई। अगस्त में फियोना, जो इरफान के मकान के बिल्कुल साथ ही रहती थी, एक उसको चीख सुनाई देती है। 6 अगस्त को सारा को घर पर टीवी के सामने डांस करते हुए एक वीडियो में देखा गया, जिसमें वो बज़ाहिर ठीक लग रही थी। उसी दिन उनकी सौतेली वालिदा के वकील के मुताबिक इरफान ने उनको एक बार फिर से बहुत पीटा था। 8 अगस्त को सारा की हालत ख़राब होना शुरू हुई। इरफान शरीफ ने फ़र्ज़ कर लिया कि वो ड्रामा कर रही है और फिर सारा को धाती डंडे के साथ दोबारा से पीटा गया। उसी रात दूसरे बच्चे, जिसका नाम यूँ बताया गया है नहीं, एक दोस्त को टेक्स्ट मैसेज किया, हेलो अर्जेंट, मेरी बहन मर गई है। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया है कि सारा की मौत एक ऐसी बच्ची की ज़िंदगी का इख्तिताम था जिसके लिए तशद्दुद एक बहुत आम सी बात हो चुकी थी। सोशल सर्विस 13 साल से इस खानदान के बारे में वाकिफ थी। वालिद को 3 बार पुरतशद्दुद रवैये की वजह से हिरासत में लिया जा चुका था। स्कूल इंतजामिया ने बारहा खदशात का इजहार किया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर यह सवाल उठता है कि क्या सारा को बचाया जा सकता था। बच्चों पर तशद्दुद सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि पूरे माशरे का अलमिया है। तो हमें अपने आसपास नज़र दौड़ानी होगी कि हमारे आसपास कहाँ पर किन बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्योंकि ये हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है।
اور خوشحال معاشرہ تبھی بنتا ہے جب ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ سارا کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔